winner are the World Cup champions of 1999. What a victory for the Sri Lankans. A fantastic Here's the man who's been largely responsible for it over the last That is Australia's joy and England. Hello to all of you and all of my viewers and listeners, as well as on the Match Point. Dr. Adnan welcomes you back on the Match Point. Time to lock the horns, because all of you know, because this is India versus Pakistan, biggest match in the cricketing history, and we are looking for a high octane clash in Dubai. The central place on 24th of October means we are in less than days, we are in the hours away from this biggest match. And the last time when these arch rivals went to see each other and to lock the horns last time, and that was the meeting of the 2019 World Cup, where India beat Pakistan in the World Cup game. But it remains to be seen, and we are uncertain, that will Pakistan be able to break the jinx in a World Cup game against India? All of you, the cricket fans, they will be well aware of the fact that Pakistan have not beaten their neighbors in this particular format when we say the World Cup. Whether it's a 50-over game or whether it's a 20-over game, Pakistan has been never able to beat India in the World Cup game. So it's a biggest question mark that what Pakistan will do in tomorrow's game, and can Babar Azam's Pakistan can reverse the situation which Wasim Akram's Pakistan, Imran Khan's Pakistan, Misbahul Haq's Pakistan and the other captains of the Pakistan could not do it. Can Babar Azam's team can turn the tables around in this big match, which is going to be happen soon after some hours in the Dubai International Stadium on the neutral soil, which has been termed as a Pakistan's alternate home once, and yet to the date they say it like this: wherever both the teams lock horns against each other, Pakistan and India, always we paint them as a mother of all clashes, and this will be the mother of all clashes which is going to happen at Dubai tomorrow, Pakistan versus India. If I tell you the importance of this match, that why I say this the mother of all clashes, why I say it the high octane clash. High octane clash you will be easily understanding when I will be telling you the details, that the television, one of the biggest production unit of the sports, which is known to be the channel of the Star. I mean, they are having the star on their star as a logo on their channel. They will be earning, can you believe that in the tomorrow's game they will be earning about 25 to 35 lakh per 10-second spot during the match. Whichever ad will be running on that network, they will be earning at the max of 35 lakh per second. The tickets of the India-Pakistan game in the high-octane clash, they got disappeared from the internet, and there was no room left to reach on the window, because when the tickets were opened for this high-octane clash, India versus Pakistan, tickets were sold out, would you believe, in 30 minutes. So that's why, proving once again that there is no clash bigger than the
India versus Pakistan clash. If I look upon the stadium, the way stadium, if you are familiar with that stadium, the journal stand, the premium stand, journal premium, premium enclosure, and the VIP enclosure, any enclosure is not having seat for the tomorrow's game. Pakistan team have never tasted success in the ODI format or in the T20 format in the World Cup game. Overall, अगर मैं देखूं तो इनका record जो है ODIs के अंदर Pakistan is always having a superior record than the India. अगर मैं 80 की दिहाई में जाऊं, if I go back in the 70s, in the 80s, Pakistan was dominating India like anything. But once the Ganguly's team made the revolution in the team and then taken over by the Mahendra Singh Dhoni and later on Virat Kohli stepping into the Indian team, the scenario is all around different from the 90s. Pakistan stars, the pace batteries and the big stars like Wasim Akram, the WOs, Shoaib Akhtar. Since then, these people have gone. The things they were in the favor of Pakistan have turned around all the way to the 180 degree. Pakistan once taken as a granted the Indian game in the 80s, match between Pakistan and India when happening in Sharjah and UAE. Pakistan was taking a guarantee of taking that match in 80% and the 90% of the cases. But now altogether, the things have started becoming very different. Indian professional team, Indian official team is one of the best professional sides of the limited over cricket, either the test cricket or the T20 cricket. The game has been enhanced. Their alternate strength, the alternate power जो इनकी bench strength है, उसका वही हाल है जो एक दफ़ा स्टीवन वॉ की ऑस्ट्रेलियन साइड का था जब उन्होंने यके बाद दीगरे 1999, 2003 और फिर 2007 का ODI वर्ल्ड कप जीता था. इंडियन टीम इस वक्त अपने बेहतरीन निक में है, जबकि पाकिस्तान टीम अभी भी अपने मिडल ऑर्डर से और जो उनके ओपनर है उनके दरमियान कुछ शफलिंग जारी है और कुछ स्ट्रगल जारी है. Obviously, when comes to the record, India always boasts of a record which is the best record against their neighbors and the arch rivals. But Babar Azam does not rely on these records. Babar Azam does not think upon these things. Pakistan के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि he is not at all bothered by the Virat Kohli's team records and the India's record against Pakistan in the World Cup game. बाबर आजम का कहना है कि पाकिस्तान की हालिया कारकर्दगी UAE में, इन द मिडल ईस्ट UAE के अंदर पाकिस्तान का जो हालिया ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 10 सालों में और ख़ासकर उनकी कप्तानी के अंदर जो T20 गेम्स खेले गए, बाबर आजम thinks that this will give an edge to Babar Azam and the Babar Azam's Pakistan in the crucial game against India. There are reasons that why Babar is not bothered about the Indian dominancy in the World Cup against Pakistan. Babar as a captain, 11-0 track record of the T20 game. जब से बाबर को कप्तान बनाया गया, बाबर ने 11 गेम्स जीती हैं, अभी तक बाबर कोई गेम नहीं हारी. जबकि दूसरी जानिब एक और जिंक्स जारी है जहां पर भारत की टीम ने पाकिस्तान को 5 मरतबा T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त दी है और पाकिस्तान की टीम आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी. अगर आप क्लोजली मवाजना करें इन दोनों जिंक्स का, बाबर आजम की 11-0, बाबर आजम पाकिस्तान की 11-0 डिफीट्स, डिफीट्स टू द अदर कंट्रीज एंड पाकिस्तान विंस 11 इन अ रो, और जिंक्स, इन दोनों में से किसी एक जिंक्स का तो खात्मा होने जा रहा है कल. या तो बाबर आजम अपनी स्ट्रीक लूज कर जाएंगे या भारत ये मैच हार जाएगा. अगर बाबर आजम स्ट्रीक अपनी लूज करते हैं तो वो उनकी 12th अटेम्प्ट में पहली हार होगी, और अगर इंडिया अपनी स्ट्रीक लूज करता है तो इंडिया इज गोइंग टू लूज फर्स्ट टाइम फॉर द पाकिस्तान. अच्छा, अगर देखा जाए तो दोनों कप्तानों में भी सुपर डुपर कप्तान है. इट विल बी द बैटल अमंग द 2 बेस्ट कैप्टन्स इन दिस फॉर्मेट. स्ट्रीट क्रिकेट के अंदर ये बेस्ट 2 कप्तान है जो कल लड़ने जा रहे हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंगली बाबर आजम का भी एज अ T20 कैप्टन वर्ल्ड कप के अंदर ये पहला गेम होगा और विराट कोहली का भी ये T20 वर्ल्ड कप के अंदर पहला गेम होगा. लेकिन विराट के ऊपर यहाँ पर बाबर की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होगा. वो किस लिए? एक तो फेवरेट का टैग भारत के ऊपर है, और इसके अलावा भारत की टीम, आपको मालूम है कि विराट कोहली
इस T20 वर्ल्ड कप के बाद शायद कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम नहीं देंगे और ये भी नहीं मालूम कि उनकी जगह T20 के अंदर आती है या नहीं आती, या वो छोड़ना चाहती हैं। इसका फैसला तो इंडियन बोर्ड और इंडियन टीम करेगी, लेकिन विराट को ये पता है कि इसके बाद ही विल नो मोर बी द कैप्टन, तो उनको इस वर्ल्ड कप का कोई अच्छा अख्ताम करना है, तो प्रेशर विल बी ऑब्वियसली ऑन विराट। When Virat Kohli and Babar Azam, when they will be locking horns with each other along with their teams, so we will be seeing the one of the best in the current cricket, in the current era. It will be the battle of captains, it will be the battle of cover drives, it will be the battle of classic strokes, and what more you can ask for as a cricket fan. So when I talk about Virat and I talk about the Babar, let's discuss about little bit about the Virat. Virat is one of the best right now in the current business. If I go to the Virat boasts with the maximum runs and the most runs in the recent T20 history. I have the records in front of me in which it is showing that Virat is having the 3,159 runs. Would you believe Virat at the best average of 52.68? 52.68 की एवरेज से रन्स बनाना आजकल की करंट क्रिकेट और करंट रूल्स के अंदर कोई खाला जी का घर नहीं है। विराट कोहली की ये फॉर्म बताती है कि वाई इंडियन टीम is having an edge over the arch rivals in this format. विराट की जो ये एवरेज है, अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि करंट क्रिकेट के अंदर 52.98 दिस इज़ द बेस्ट एवर एवरेज इन एनी फॉर्मेट। अगर मैं टेस्ट में भी चला जाऊँ, अगर मैं ODI में चला जाऊँ, तो भी ये बेहतरीन एवरेज है किसी बैट्समैन की जो मैचेस के दौरान हो सकती है बैट्समैन की। विराट कोहली की अगर मैं रिसेंटली देखूँ, माइट बी यू विल बी इंटरेस्टिंग टू नो कि उनकी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो T20 की कारकर्दगी है उसमें कितना वज़न है और कितना दमखम है। विराट ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब तक, चाहे वो कप्तान थे या कप्तान नहीं थे, 6 गेम्स खेल रखी हैं विराट कोहली ने। T20 गेम्स की मैं बात कर रहा हूँ, और T20 के अंदर उन्होंने 6 इनिंग्स में 254 रन्स बना रखे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और उनकी एवरेज थी 84.66। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उनका जो स्ट्राइक रेट था दैट वाज 111.97, विच इज़ द बेस्ट अमंग द टॉप 5 बैट्समैन हु हैव बैटेड इन this era against Pakistan from number 1 to the number 5 spot. विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 78 नॉट आउट T20 गेम के अंदर, और 2 दफ़ा विराट कोहली ने 50 रन स्कोर किए पाकिस्तान की टीम के खिलाफ। और यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊँ कि विराट कोहली जो पाकिस्तान की आखिरी 3 वर्ल्ड कप लॉस है, T20 के अंदर जो वर्ल्ड कप लॉस है, उन तीनों में विराट कोहली was not out. विराट कोहली का मैदान में होना इस चीज़ की ज़मानत है कि पाकिस्तान जैसे आर्च राइवल को भारत की टीम किसी भी ग्राउंड पे शिकस्त दे सकती है। पाकिस्तान को अगर यहाँ पर अपना पल्ला मजबूत रखना है और भारी रखना है तो Pakistan will have to control this man. The men in blue are in a dangerous shape, but they have to control this man, we say विराट कोहली। जैसा कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, उस पर भी आऊँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी में किया था। बहरहाल अगर बाबर आजम के ऊपर मैं आऊँ तो बाबर आजम भी किसी से कम नहीं। बाबर आजम ने 6 T20 सेंचुरीज की हैं अभी मतवातर, अभी करंट एरा के अंदर, विच आर मोर देन एनी अदर बैट्समैन। नो अदर बैट्समैन इज़ नियर टू द बाबर आजम। जब मैं बात करता हूँ नेशनल लेवल पे या किसी दूसरे लेवल पे, तो स्वाय डेविड मिलान के, जिनके मेरे ज़हन में आ रहा है कि 3 सेंचुरियाँ हैं, उनके अलावा शायद ही किसी दूसरे बल्लेबाज ने बाबर के मुकाबले पे सेंचुरियाँ की हों। बाबर ने 7,000 रन जोड़े हैं इन 187 गेम्स, विच इज़ अबव कोहली। कोहली ने यही मार्का 212 गेम्स में, और क्रिस गेल ने यही मार्का 219 गेम्स में पूरा किया था, जो बाबर ने उनसे कहीं कम में पूरा किया। तो बाबर आजम जो है, जो कवर ड्राइव के बादशाह और पाकिस्तान टीम और शाहीन के कप्तान, वो भी किसी से कम नहीं अगर मैं नेक टू नेक कोहली वर्सेस बाबर आजम के कंपैरिजन पे आऊँ। सिंस 2019 अगर मैं बात करूं, मैं एज अ स्टैंडर्ड लेता हूं क्योंकि बीच में कोविड सिचुएशन वजह से क्रिकेट थोड़ी दूर हो गई, क्रिकेट कम हो गई, लेकिन 2019 जो वर्ल्ड कप का ज़माना था और जो जब 2019 स्टार्ट हुआ, अगर मैं वहाँ से
बाबर को मैं लूँ तो देखूँ तो ही हैज़ स्कोर्ड 6 सेंचुरीज इन द T20 क्रिकेट, नो अदर बेटर फ्रॉम द पाकिस्तान। वो उनके कोई करीब भी उनका कोई जो उनका साथी था वो या उनके कोई मुखालिफ अपोजिशन बैट्समैन वो 3 से ऊपर नहीं बढ़ा और कोई भी पाकिस्तानी 2 से ऊपर नहीं बढ़ सका व्हेन इट कम्स टू द कंपैरिजन विद द ग्रेट बाबर आजम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड 5 गेम्स हो चुकी हैं जहां पर भारत की टीम ने पाकिस्तान को 4 दफ़ा ज़ेर किया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने 5 दफ़ा क्यों नहीं कहा, क्योंकि जो पहली दफ़ा थी जब 2007 के वर्ल्ड कप में भारत की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी तो वो मैच टाई हो गया था, लेकिन उसके बाद भारत की टीम ने पाकिस्तान को उस मैच के अंदर 3-0 से शिकस्त दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान जो है वो फुटबॉल का मैच खेल रहे थे? वॉज इट अ रग्बी मैच? Was it a soccer game? No, it was still a cricket game, but the score was 3-0 because भारत की टीम ने पाकिस्तान को बॉल आउट किया था। India and Pakistan are the serious arch rivals, whether in the term of the cricket, in the term of hockey, in the term of 50 over game or in the term of 20 over game. लेकिन अब देखना ये है कि अगर मैं डेटिंग बैक टू द 2007 जाऊं तो 2007 के स्कार्स अभी तक पाकिस्तान के पास हैं। 2007 when Pakistan was beaten by the arch rivals in the ball out game, and later on the great Misbah-ul Haq, the great skipper of Pakistan, nearly bringing the Pakistan to the edge of the victory, but unfortunately Pakistan losing that game with a one shot, the specific बैक शॉट ऑफ मिसबाहुल हक। तो वो स्कार्स अभी तक पाकिस्तान के अंदर जाग रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने आज तक वर्ल्ड कप गेम में भारत को शिकस्त नहीं दे रखी है और पाकिस्तान ने 2009 का वर्ल्ड कप जीता, जिस तरह के भारत ने पहला एडिशन 2007 का जीता, बट सिंस 2007 and 9 नाइदर ऑफ द नेबर्स either the Indian team or the team Pakistan, none of them have been able to win the World Cup। जी, अब स्पोर्ट्स के साथ थोड़ी सी सियासी बात भी कर लेते हैं। सियासी बात और वो भी मैच पॉइंट में अमूमन होती नहीं है, क्योंकि मुझे सियासत का इतना पता नहीं है एंड आई एम हैविंग नो इंटरेस्ट विद द पॉलिटिक्स और आइदर वॉट एवर द पोलिटिकल रीजन। बट मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, अगर मैं भारत की तरफ आऊँ तो भारत का एक हमेशा से एक तरीकाकार रहा है, चाहे वो 1990s के शारजा के ग्राउंड्स हों या 2000 के शारजा के ग्राउंड हों या ये 2020 के, इन 20 साल में भारत ने अपने आप को ना बदला तो सिर्फ अपने लाइनअप को बदला या अपनी बैटिंग को बदला या अपनी टीम को बदला, लेकिन अपने हालात को, अपने स्टेटमेंट्स को ना बदला। भारत का एक ही बयान पिछले 20-30 साल से हर उस मौके पे जब पाकिस्तान ने भारत से खेलना होता है वो कोई ना कोई शगुफा जो है उसका इस गेम के अंदर छूटना जो है वो लाजमी हो जाता है। भारत के नामवर ओलंपियन परगत सिंह, आप इस नाम से बखूबी वाकिफ होंगे जो लोग हॉकी के शौकीन हैं। हॉकी मैच जब हुआ करते थे पाकिस्तान की तरफ से शहनाज शेख, समीउल्लाह, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, द जायंट्स, और इंडिया के साइड से परगत सिंह, जफर इकबाल, शाहिद, ये बड़े बड़े नाम जो हैं भारत भी ओलंपिक चैंपियन रहा, ज़्यादा हुक्मरानी की उन्होंने ओलंपिक्स में, पाकिस्तान ने भी की। उस दौरान वो पाकिस्तान के परगत सिंह आर्च राइवल्स रहे। वो इंडिया और पाकिस्तान के हाई ऑक्टेन मैचेस से बखूबी वाकिफ हैं। खुद वो हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, कप्तान रह चुके हैं, भारत के लिए टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं, लेकिन अब सियासत में आने के बाद वो खेल के प्यार से नावाकिफ हो गए और जानबूझ के पॉलिटिक्स को बीच में लाना शुरू हो गए। परगत सिंह जो है वो लाना क्यों शुरू हो गए? क्योंकि जब तक वो हॉकी में थे वो ठीक थे, जब तक वो स्पोर्ट्समैन पे वो ठीक थे, लेकिन उन्होंने जल्दी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला शगुफा अभी छोड़ा रिसेंटली वर्ल्ड कप गेम से पहले, और उन्होंने वो ये शगुफा छोड़ा कि पाकिस्तान से मैच का भारत को बायकॉट करना चाहिए। मुझे वैसे तो ज़्यादा अफसोस नहीं होता, बहुत से लोग भारत से ये कहते हैं, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के मुंह से ये बात सुननी बहुत ही बुरी लगती है। जिस तरह के मुझे सौरव गांगुली का एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा, हालांकि दादा हमेशा से बड़े एक्टिव रहे, एक्टिवली ही वाज अ ग्रेट आर्च राइवल्स। जब हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वो लड़ते थे तो वो भारत के लिए अपनी जान लड़ाते थे, लेकिन जब लास्ट टाइम जब मैच कैंसिल हुआ तो उन्होंने कलकत्ता में पाकिस्तान टीम को दावत की कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि पाकिस्तान टीम कलकत्ता में मैच खेलेगी और हम मैच को ज़ाया नहीं होने देंगे। तो उनका ये जेस्चर बहुत अच्छा था और यही जेस्चर हर स्पोर्ट्समैन का होना चाहिए जो अमूमन
हम देख सकते हैं स्पोर्ट्समैन से। लेकिन प्रगत सिंह का ये कहना कि गेम का बायकॉट किया जाए क्योंकि जम्मू सेक्टर में ये हुआ था। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा था कि भारत ने पाकिस्तान को, मैंने आपको बताया कि 5 दफ़ा शिकस्त दे रखी है वर्ल्ड कप गेम्स में। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, T20 क्रिकेट के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन जो आखिरी 3 दफ़ा पाकिस्तान को शिकस्त हुई, 2012 में शिकस्त हुई, 2014 में शिकस्त हुई और फिर 2016 में शिकस्त हुई। तो इन तीनों शिकस्तों में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। तो माइट भी पाकिस्तान के स्किपर के दिमाग में या थिंक टैंक्स के दिमाग में यह बात हो कि पाकिस्तान को अगर टॉस जीतना है तो उनको पहले इंडिया को बैटिंग करानी चाहिए और उसके बाद चेज करना चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट सीरियस थिंग इन द क्रिकेट, दिस थिंग्स डजंट हैपन। Obviously they have to see the lot of things, they have to see the team selection, they have to see the pitch कि क्या चीज़ साजगार जा रही है, मॉइस्चर कितना है उसके अंदर, टर्न है कि नहीं, स्पिन ट्रैक, लॉट ऑफ थिंग्स कैन मैटर। लेकिन ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे जहन में था कि शायद बैक ऑफ द माइंड ऑफ द थिंक टैंक्स ये चीज़ चल रही हो कि लास्ट 3 एनकाउंटर्स में पाकिस्तान never chased, India always chased, and you know they have a long batting lineup which is never going to end. So इंडिया की टीम को अगर पहले पाकिस्तान बैटिंग करा के चेज करना चाहे तो दिस कुड हैव बीन द प्लस पॉइंट, माइट बी इन द बाबर आजम्स माइंड। सो इफ आई विल टेल यू द डिटेल्स ऑफ दोज कि 2012 में जब पाकिस्तान खेला तो पाकिस्तान 128 पे ऑल आउट हो गया था। ये जो लास्ट 3 मीटिंग्स हैं इसमें ये पाकिस्तान का सेकंड लोएस्ट स्कोर था। 2014 में पाकिस्तान कैन कीप इंडिया अंडर प्रेशर विद दिस वे, विद बैटिंग फर्स्ट। जो तीसरी मीटिंग हुई इनकी 2016 में, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने लोएस्ट अपना लास्ट 3 गेम्स का जो स्कोर था वो बनाया, महज 118 रन्स। पाकिस्तान ने 5 विकेटें लूज़ की, लेकिन पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम को कोई बड़ा टोटल नहीं दे सकी। और विराट कोहली इंडियन टीम, दे आर नोन टू बी द बेस्ट इन द बैटिंग सिंस 80s, दे आर द बैटिंग मिस्टीरियोस। सो उनके लिए ये कोई इतना बड़ा हदफ नहीं था। और इनकी खास बात जो आपको मैंने प्रोग्राम में पहले बताई थी कि कोहली रिमेन्ड नॉट आउट इन ऑल दीज 3 गेम्स। तो दिस शुड बी इन द माइंड ऑफ think tanks, the Australian, South Africans who were in the dressing room, the think tanks along with the Pakistan team working. तो हेडू को यह बात पता होना चाहिए। आई मीन मैथ्यू हेडन, जिनको प्यार से हम हेडू कहते हैं, शेब अख्तर उनको, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि हाउ टू फिक्स दीज थिंग्स एंड वेयर पाकिस्तान कैन ब्लॉक इंडिया एंड व्हाट कुड हैव बीन बेस्ट फॉर द पाकिस्तान टू प्ले इधर बिफोर इधर आफ्टरवर्ड्स। सो ये सब चीज़ें उनके दिमाग में होंगी। पाकिस्तान का जो ये 0-5 रिकॉर्ड है इन द क्लैशेस में ओवरऑल, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो कभी इंडिया को नहीं हरा सका। जब हम मुकाबलों की बात करते हैं, आईसीसी टूर्नामेंट्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान हैज़ ओनली बीन एबल टू बीट इंडिया 3 times in the ICC tournaments, but none of them was the World Cup. पाकिस्तान हैज़ बीटन 3 times और तीनों दफ़ा जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी है भारत को, हिंदुस्तान को, उनको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर दी है। और जो आखिरी शिकस्त थी वो ज़र्ब बहुत भारी थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम को एक गैर मुतवक्का शिकस्त का सामना करना पड़ा था फाइनल गेम के अंदर, एंड दैट गेम वाज बीन प्लेड इन द इंग्लैंड। ओवल का मैदान था, ओवल का मैदान और लॉर्ड्स का मैदान पाकिस्तान के लिए हमेशा से खुशबख्तियाँ लेके आया है, चाहे वो ODI गेम्स हों, चाहे वो T20 गेम्स हों, या चाहे वो टेस्ट गेम्स हों। हमेशा से पाकिस्तान जब लंदन आया है, पाकिस्तान की किस्मत जागी है। और जो आखिरी किस्मत भारत की डूबी और पाकिस्तान की जागी, तो उसमें भी शायद लंदन का हाथ था। लेकिन अफसोस कि अब लंदन यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान का अल्टरनेट होम दुबई फिर भी दोनों टीमों के माबैन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि अगर मैं याद के घोड़े दौड़ाऊँ बैक इन द पास्ट फ्रॉम द जोगिंदर शर्मा दैट फाइनल ओवर, जहाँ पर मिसबा उल हक ने 6s की बरसात की उस मैच के आखिरी लम्हात में, लेकिन आखिरकार वो फाइन लेग के ऊपर एक बड़ा आसान कैच दे बैठे और इंडिया विनिंग द फर्स्ट एवर T20 वर्ल्ड कप इन द स्टाइल। और उसके बाद 2016 में विराट कोहली की यादगार सेंचुरी, यादगार इनिंग्स, सेकंड बैटिंग करते हुए एंड विनिंग द गेम फॉर इंडिया। एंड देन उसके बाद अगर मैं याद करूं
तो वो दैट सेंटिनेटिंग स्पेल ऑफ द मोहम्मद आमिर जिसने बिल्कुल विराट कोहली को बेबस कर दिया था। और आजकल की क्रिकेट के अंदर विराट कोहली को इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बॉल्स पे 2 टाइम्स आउट करना, ये भी पाकिस्तानी पेसर्स का कमाल था। तो ये सारे इजादों के दरीचे जो हैं हमारे वर्ल्ड कप गेम्स के, ये साथ साथ चलेंगे। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू सी द सेम scintillating, thrilling atmosphere in this game of India versus Pakistan। जो मैंने आपको ये माहौल याद करवाए पिछले गेम्स के, तो लगता यही है कि इस गेम का माहौल भी इनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। इन द लास्ट डेकेड अगर मैं देखूं, T20 की जो डेकेड है, पाकिस्तान टीम हैज़ बिकम अ फोर्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। पिछले 10 साल में इनकी गेम्स जो हैं वो बहुत इम्प्रूव हुई हैं। अगर मैं T20 फॉर्मेट में हूँ, ये वो फॉर्मेट है, ये वो स्ट्रीट फॉर्मेट है जहाँ पर पाकिस्तान का पन्ना थोड़ा दूसरी टीमों में भारी रहा है। अ पार्ट ऑफ द ODI क्रिकेट, जहाँ पर व्हेन आई स्पीक अबाउट द 50 ओवर गेम, in that Pakistan, the Shaheens are struggling. But when you come to the limited over formats, to the 2020, this is where they are dominating and they are beating their opponents in style and also have the better track record in the last 10 years. अगर मैं आपको उसका थोड़ा सा उसका शॉर्टकट दूं, आपको उसका निचोड़ दूं कि मैं ये किन बात कर रहा हूँ फैक्ट्स के ऊपर, तो पाकिस्तान has been victorious in 77 games and they have played in these times the 129 games and they have lost only 45 games and the winning percentage was 59.7. 59.7% win percentage T20 के अंदर is a very good track record and a very good percentage. अगर यहीं पर मैं आपको बताऊं टीम इंडिया के बारे में कि भारत की टीम का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो विन परसेंटेज जो है वो क्या थी, तो वो भी आप हैरान नहीं होंगे, क्योंकि आपको मैंने ये बताया कि व्हेन इट कम्स टू द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट्स ऑलवेज हिस्टोरिकली द क्लैश ऑफ टाइटन्स, इट्स ऑलवेज द स्ट्रीट फाइट, इट्स ऑलवेज द बेस्ट वर्सेस बेस्ट, क्योंकि दोनों टीमें जो है वो इस फॉर्मेट की शहनशाह है और दोनों टीमें अलॉन्ग विद, ठीक है मैं वेस्ट इंडीज़ को भी थोड़ा सा इस पर प्लस पॉइंट देता हूँ, लेकिन ये तीनों टीमें, लेकिन खासकर से जो सब कॉन्टिनेंट टीम्स हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे इनमें इनकी लीग्स का कमाल है या इनके स्ट्रीट फॉर्मेट का कमाल है, लेकिन दोनों टीमों को अबूर हासिल है इस क्रिकेट के अंदर। तो इसीलिए जहाँ पर आपको मैंने पाकिस्तान की विक्ट्रीज की बात बताई, तो मैं आपको भारत का मुवाजना भी करके बताऊंगा कि रियली द पाकिस्तान's neighbors record in the last 10 years is also very good. They have played lesser games than Pakistan and little bit higher percentage. उनका जो win percentage मेरे सामने आ रहा है वो 63.5 है। If I start from the inaugural T20 champions से start करूं, and they have registered 73 wins and they have played only 115 matches और सिर्फ 37 मैच ऐसे थे जहां पर टीम ब्लू को शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेक अ बो, व्हाट अ ट्रेमेंडस रिकॉर्ड इन द लिमिटेड, इन दिस वेरी लिमिटेड ओवर क्रिकेट इन द 2020 फॉर्मेट। तो ये चीज इंडिया को यहां पर एज देगी, बट बोथ टीम्स आर हैविंग अ ट्रेमेंडस रिकॉर्ड इन दिस। थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, ज़रा थोड़ी सी बातें क्रिकेट की ज़्यादा हो गई हैं, थोड़ी सियासी बातें कर लेते हैं क्योंकि मुझे प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ भी जाना है। भारत के जो परगत सिंह की कभी पेंसिल चोरी हो जाती है, कभी रबर चोरी हो जाता है, वो खुद तो बड़े हो गए लेकिन उनका दिल और दिमाग जो है वो बड़ा नहीं हुआ और उनको अभी तक समझ नहीं लगी कि स्पोर्ट्स के मसलों में ये पेंसिल और रबर के जो मसले हैं इनको ना घुसाया जाए। लेकिन वो अब भी इस बात पे मुनहसिर थे, इस बात पे इसरार कर रहे थे कि ये मैच कैंसिल किया जाए और ख़ुद ये अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पोर्ट्स क्लैशेस में और मैचेस के दौरान क्या होता है। परगत सिंह उसी टीम का हिस्सा थे, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो, जिनको 1982 की एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम ने दिल्ली के अंदर 7-1 से एक शिकस्त दी थी। परगत सिंह वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजीव शुक्ला की। राजीव शुक्ला जो BCCI के वाइस प्रेसिडेंट हैं, VP हैं, और उन्होंने थोड़ा सा हौसला अफजा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि गेम हैज़ टू बी कंटिन्यूड। अब चूंकि सारे इंतजाम हो चुके हैं, जिस सेक्टर में भी जो भी हुआ था, जिसकी पेंसिल चोरी हुई थी या नहीं हुई थी, जिसकी रबर चोरी हुई थी, लेकिन मैच तो हम खेलेंगे दुबई में।
तो मैच होना चाहिए, गेम को ऑन होना चाहिए। ये चीज़ बड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी। बड़ा गेम होने जा रहा है 24 अक्टूबर को इस मैच को जो सुपरवाइज करेंगे 2 अंपायर, उसमें क्रिस गैफनी अंपायर होंगे और रेस्मस जो है वो दूसरे अंपायर होंगे। दोनों न्यूट्रल अंपायर जो हैं रखे गए हैं पाकिस्तान और भारत के लिए। और इसके अलावा जो थर्ड अंपायर होंगे वो मरहूम डीन जोन्स के ओपनिंग साथी और बल्लेबाज डेविड बून, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, वो इस मुकाबले के लिए थर्ड अंपायर के तौर पर चुने गए हैं। अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, तो दुबई क्रिकेट स्टेडियम जो है बहुत ही खूबसूरत पैनोरामिक व्यू का दुबई स्टेडियम जो है, इसने अभी तक 102 मैच होस्ट किए हैं। 102 मैचेस हैव बीन होस्टेड बाय द T20 गेम्स की बात कर रहा हूँ। द 102 गेम्स हैव बीन होस्टेड बाय द दुबई स्टेडियम, जिसके अंदर 62 गेम्स जो हैं वो ऐसे हैं जो दुबई के इस इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए हैं, जबकि 35 गेम्स जो हैं वो खेले गए हैं ICC एकेडमी ग्राउंड नंबर 1 के ऊपर, जबकि 5 गेम्स ऐसे हैं जो खेले गए हैं ICC क्रिकेट ग्राउंड नंबर 2 के ऊपर। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही हो कि ये ICC क्रिकेट ग्राउंड्स एकेडमी ग्राउंड्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वही ग्राउंड्स हैं जब PSL के दिनों में, पाकिस्तान सुपर लीग के दिनों में और इंडियन प्रीमियर लीग IPL के दिनों में, जब टीम्स जो हैं नाइट राइडर्स, कलंदर्स, किंग्स, ज़ालमी, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर गेम्स के अंदर जाके, तो वहाँ पे जो गेम्स होते हैं वो एकेडमी क्रिकेट ग्राउंड्स हैं। तो वहाँ पर तकरीबन दोनों को मिला के 40 गेम्स जो है वहाँ दुबई ने होस्ट किए हैं। ओवरऑल दुबई ने 102 गेम्स होस्ट किए हैं, जिसमें से 62 गेम्स जो हैं वो उस स्टेडियम पे होस्ट हुए हैं जो कि कल पाकिस्तान और इंडिया की मेज़बानी करेगा। और यही दुबई का maximum hosted ground hai in the terms of T20s. So I say good luck to both of the fans from the Pakistan and India. जीत उसी की होगी जो अच्छा खेलेगा। दोबारा कल आपसे मुलाकात होगी और शायद स्टूडियोज में मुलाकात हो। तो कल तक के लिए डॉक्टर अदनान says you goodbye. Whatever team, whoever you are supporting, support your teams. And it will be the good for the cricket and it will be good for the game, and we hope for the better game and for the good game. Whoever won, victory should be for the good game and for the spirit of the game. Till then, take care and bye bye. Here's the man who's been largely responsible for our goal of election. The fans welcome. That is Australia's joy.